Good afternoon, students. So, today we are going to start our new chapter, chapter number 3 of civics. What is government? And today, this is our lecture number 1. So, let's start. So, our chapter name is What is government? ओके सो ये देखिए क्वेश्चन व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी आपका क्वेश्चन से ही आपका चैप्टर स्टार्ट है कि व्हाट इज गवर्नमेंट. सो आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हो? यू आर गोइंग टू स्टार्ट द व्हाट इज गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है. ओके सो स्टूडेंट, एक्चुअली वी ऑलवेज हियर द टर्म गवर्नमेंट, बट डू वी नो एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स? So, is it a means to rule over the people? Is it a mean to bind people by the law? No. Or is it a mean to protect the country? Or is it a mixture of all these things? So, student, in your class, chapter number 3, this one is chapter number 3, we will talk about the basic ideas of government. Okay, what it does and how it perform its duties. We will talk about the various forms of the government. Clear? So student, what is government? So you must have here the word government mentioned several times. So in this chapter you will learn about what is government is and the important role it plays in our lives. What do governments do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of governments, such as monarchies and democracies? So read more and find out. So ये जो आपके पास पैराग्राफ अभी हमने देखा, सो इस पैराग्राफ में मेन क्या चीज शो कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में जो आप पढ़ रहे हो वो ये देखोगे, क्योंकि आपने गवर्नमेंट जो वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा, घर में पेरेंट्स से भी सुना होगा या आपने कहीं भी आसपास सब जगह से गवर्नमेंट जो वर्ड है वो आपने सुना हुआ है. सो इस चैप्टर में आप यही सब रीड करेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है और ये हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. गवर्नमेंट क्या करती है? ओके, व्हाट डू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट क्या करती है? हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, कि ये कैसे डिसीजन लेती है कि क्या करना है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसी. साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवं और दूसरी मोनार्कीज. ओके, मोनार्कीज गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको हम स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, a government is of prime importance and the very pillar of decision making in a country. A government plays a vital role in making crucial decisions of a company and even establishing different facilities for the citizens of a country. For example, the government looks into elements like building schools and roads, improving the supply of electricity, lowering the price of onion and other essential household items when they get expensive, and so on. Furthermore, the government also need to take necessary action on distinguishing social issues and similar elements like regulating and administrating railway and postal services. So along with this, the government has a wide range of roles and responsibilities. So you will learn more about each of these roles in this chapter. Okay, so student, so every country need a government to make decision and get things done. कोई भी कंट्री है, ठीक है, हर एक कंट्री को क्या करता है, हर एक कंट्री को अलग अलग जो डिसीजन लेने और काम करने के लिए गवर्नमेंट की क्या होती है, जरूरत होती है. ओके,
एक गवर्नमेंट की नीड होती है जब भी उसको कोई डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों को को काम काम करना होता है, तो सबके लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। एंड दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, or how to reduce the price of onion when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity। जैसे डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं हम, सो ये डिसीजन जो है वो क्या हो सकता है, ये डिसीजन जो है ना वो कई चीजों के ऊपर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे रोड एंड स्कूल कहाँ पर बनाए जाएं। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा क्या है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, तो बहुत ज्यादा प्राइजेस हो जाने पर किसी भी चीज के जो प्राइस है वो कैसे कम किए जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है इसके साथ साथ द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल इश्यूज पर, कई सारे सोशल इश्यूज पर एक्शन भी लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है, किसके लिए, जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाती है। क्योंकि पुअर पुअर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा एक सोशल इशू हो जाता है, ठीक है। सो उनकी हेल्प करने, उनकी हेल्प करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जाएं, ठीक है, प्लानिंग की जाए, तो ये सोशल इश्यूज के ऊपर उन गवर्नमेंट ने एक्शन लेती है। सो इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। इसके साथ साथ अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ वो और भी बहुत से इम्पोर्टेंट काम करती है, जैसे कि पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज को चलाना। क्लियर स्टूडेंट, इट मीन्स कि गवर्नमेंट, आप देख रहे हो गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स जो होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। सो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। अब गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो ये सब जो हमने पीछे जितने भी इशू देखे भाई इनके ऊपर काम करना है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट और भी बहुत से काम करती है। गवर्नमेंट का काम कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, ये भी गवर्नमेंट के कामों में आता है। तो गवर्नमेंट कंट्रीज के हमारी बाउंड्री उनको प्रोटेक्ट करना और दूसरी कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशन बना के रखना, ये कंट्री का काम होता है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। अब स्टूडेंट आप ये मत सोचे कि गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो मतलब किसी पर्सन को ले कि ये पर्सन देखो जी ये गवर्नमेंट जा रही है, नहीं। अभी आपको क्लियर होगा कि गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट all its citizens have enough to eat and have good health facilities। इसके साथ साथ उनकी और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे एक कंट्री, आप एक जो कंट्री में उनके जितने भी वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं, जो जितने लोग वहाँ रहते हैं, उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उन्हीं को इनफ मतलब खाने के लिए इनफ फूड मिले, ठीक है, उनको फूड मिले, साथ ही साथ उनको हेल्थ फैसिलिटीज देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी गवर्नमेंट की है। एंड व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर like tsunami and earthquake. So it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people। आप देखते हो कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, ड्रोट आ गया, ठीक है। तो बहुत से ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी जो गवर्नमेंट ही है, जो जितने भी ये इफेक्टेड पीपल होते हैं इन डिजास्टर से, उनकी हेल्प करती है। Okay, and if there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also a part of the government। और अगर मान लो किन्हीं लोगों के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है या कोई क्राइम होता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, लोग कोर्ट में जाते हैं जस्टिस के लिए। तो इट मीन्स क्या हुआ, कोर्ट ऑल्सो आ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोर्ट भी हमारी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। ओके, सो परहैप्स
you are wondering how government managed to do all this. So अब आप लोगों को देखो, आपने कितने सारे वर्क देखा जो गवर्नमेंट करती है, तो आप बड़े वंडर हो रहे होंगे इस सबको देखिए कि गवर्नमेंट इतने सारे वर्क करती है, तो वो इन सभी कामों को कैसे मैनेज करती है, ठीक है? हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उन्हीं के लिए क्यों जरूरी है ये सब करना. सो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, देयर नीड टू बी अ सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड. सो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर मान लो बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो काफी हद तक एक हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है जिसमें क्या लिया जा सके, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनको लिया जा सके. एक हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है कुछ जो इन इनसे के रिगार्डिंग डिसीजन को ले सके. ओके, सो नाउ, so you can see in this picture some examples of institution that are part of the government. क्योंकि गवर्नमेंट में देखो क्या है, जितने भी सभी इंस्टीट्यूट, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सब इस तरह के काम करती हैं, अलग अलग कामों में जो अंगेज्ड होती हैं, तो वो सभी इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं, गवर्नमेंट का ही पार्ट होती हैं. जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन रेलवेज एंड भारत पेट्रोलियम, सो ये क्या है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है. Okay, so next is some rules have to be made and apply to everyone. अब कुछ rules होते हैं, so some rules have to be made that apply to everyone. अब मान लो भाई इतने सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, सो अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ना बनाया जाए तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है इन सबको फॉलो करे. जो भी कोई काम है जो गवर्नमेंट कहती है वो सब कामों को फॉलो फॉलो करे. सो कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जो सभी के ऊपर, जितने भी उस कंट्री के सिटीजन हैं, सबके ऊपर वो अप्लाई किए जाते हैं. Okay, so some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. जैसे हम एक एग्जांपल ये ले रहे हैं कि देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, और एक कंट्री की जो टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब जो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज है, सीमाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो हमारी कंट्री में लोग रह रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर फील कर सके. तो इसीलिए इन सब चीजों की जरूरत होती है. ओके, सो यहाँ पर governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. तो लोगों के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे काम करती है, वो रूल बनाती है, डिसीजन लेती है, और अपनी टेरिटरी में रहने वाले जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उन पर ये सब वो इम्प्लीमेंट भी करती है. Okay, now the next topic is level of government. Now the next topic is level of government. Now that you know that the government is responsible for so many different things. Okay, अभी हमने वो पीछे करा ना, we have already studied about this ना, कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे कामों को के लिए रिस्पॉन्सिबल है. So can you think of how it manages to do all these? मतलब आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करती है? इतने सारे उनके पास काम होते हैं करने के लिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट के ऊपर है, तो वो कैसे मैनेज करती है? सो द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर काम करती है. एंड लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या आपके पास 3 लेवल्स आपके पास गवर्नमेंट के हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. Okay, so at the local level,
the government work at different level. First is local level. Okay, local level. So local level at the level of state and the national level. तीन level हो गए, local level, state level and the central level of the government. So the local level means in your village, town and locality. अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें क्या आती है, आपके विलेजेस, टाउन्स एंड लोकेलिटी, ठीक है, उसको देखना. सेकंड द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर द एंटायर स्टेट, जहां पर पूरे स्टेट को कवर कर लिया जाता है, एंटायर स्टेट आता है वहां पर. ओके, सो फॉर एग्जांपल हरियाणा, यस, हरियाणा और असम, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, जितने भी सभी आपके स्टेट्स हैं, तो कोई भी स्टेट ले लीजिए. सो एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, असम एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री. और नेशनल लेवल पर आपके क्या आता है, सारी की सारी कंट्री आ जाती है. So later in this book, you will read about how local level government functions. आप इस बुक में के मतलब के बाद में इस बुक में आप ये सब भी पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो हमारी कैसे काम करती है. एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जब आप दूसरी क्लासेस में आगे 7th और 8th क्लासेस में जाओगे, सो यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. क्योंकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनके अंदर आप स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट के फंक्शंस की स्टडी करोगे. Dear students, so there are three level. First is local level, second is state level and third is central level. ठीक है, so तीन लेवल हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है. So yes, look at this map. Yes, look at this map, students. It is the India state and union territories are showing in this map. ओके, एंड इसमें देखिए, ये मैप जो है इसमें सारी आपको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं. आप इसको ऑलरेडी कर चुके हो, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को. एंड ये जो दिस मैप इज शोइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 2011. ये वाला जो मैप आपके पास है, इस मैप में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 2011 को शो किया गया है, जहां पर ये जो आपके पास ये वाली लाइन्स है सब, ये दिस वन, ओके, ये लाइंस आपकी किसको शो करती हैं, ये करती हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को. these lines are shown the international boundaries. Okay, and students, these lines are ये this one light, बिल्कुल लाइट कलर में जो है, these lines are showing the स्टेट बाउंड्रीज. ओके, एंड हर एक स्टेट में देखिए बहुत सारी, ये देखिए इस तरीके से डिवीजन किए गए हैं. सो ये आपके क्या शो कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को. ओके, सो दीज लाइन शोइंग द बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को ये शो कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कितने एक स्टेट में कितनी कितनी आपके डिस्ट्रिक्ट है. ओके, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ये सब आपके किस में आते हैं, लोकल में आते हैं, स्टेट लेवल पर, एंड सारा आ जाए तो आपके पास सेंट्रल लेवल पे. नाउ द नेक्स्ट मैप इज, यस, look at this map, student. This map is showing the adjacent countries, yani neighboring countries. Okay, so list of the India's neighboring countries. So the neighboring countries of India are, first is student Afghanistan, okay, Bangladesh, Bhutan, चाइना, मालदीव्स, ये देखिए नीचे ये सब, ये लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे मालदीव्स. ओके, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ये सब आपकी क्या है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. एंड इंडिया इज लोकेटेड लैटिट्यूडनली in the northern hemisphere and longitudinally in the
ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था ये हमारा मान लो ग्लोब है। ओके, सो ये हमारा इक्वेटर, ये हमारे क्या हुए लैटिट्यूड, और ये हमारे पास क्या हुए लॉन्गिट्यूड। ओके, ये हमने स्टडी किया था। तो वो ये बता रहा है कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। एक तो नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर जाओ नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये वो लोकेटेड है। एंड लॉन्गिट्यूडनली देखें तो लॉन्गिट्यूड में हमने देखा था प्राइम मेरिडियन से इधर वाला पार्ट आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वेस्टर्न। सो ये आपका प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पर आपके पास इंडिया जो है वो लोकेटेड है ग्लोब पर। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूडनली देख लें तो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लॉन्गिट्यूडनली देखें सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है हमारा इंडिया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज एंड द गवर्नमेंट। Yes, next topic is laws and government. So the government makes laws and everyone who lives in a country has to follow this. So student, एक और गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लॉ बनाना। ओके, और हर कंट्री में हर किसी को, एवरीवन को, जो भी इस कंट्री में रह रहा होता है उन्हें इन सभी लॉ को फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। सिर्फ यही केवल एक वे है जिससे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, केवल इसी वे से जिससे गवर्नमेंट काम कर सकती है। So just like the government has the power to make decisions, similarly it has to power to enforce its decision. So गवर्नमेंट के पास जैसे लॉ बनाने की पावर होती है, वैसे ही ये पावर भी होती है कि लोगों को लॉ मानने के लिए वो फोर्स करे, ये पावर भी उनके पास होती है। So for example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license। कि ये एक लॉ बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को, जो भी मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल चलाते हैं, ठीक है, उनको पास लाइसेंस होना जरूरी है। सो एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग, यस, एनी पर्सन caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money। कोई भी पर्सन अगर वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे या तो जेल होती है या फिर उसे एक मनी की फॉर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट फाइन के रूप में देना पड़ता है। सो विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। सो अगर गवर्नमेंट इस तरह के लॉ जो है वो नहीं बनाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कोई भी विदाउट दीज लॉज, इन लॉज के बिना तो गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। मतलब अगर वो कोई भी लॉ नहीं, अगर कोई लॉ नहीं बनाए जाते हैं तो गवर्नमेंट की जो पावर है, कोई डिसीजन मान लो लिया गया है तो वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा क्योंकि लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, कोई लॉ नहीं है। ठीक है, सो लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये विदाउट, देखिए आप देखिए ना तो हेलमेट है इसके पास, आई थिंक इस पे लाइसेंस भी नहीं होगा। सो यहाँ पर इसे क्या करना पड़ रहा है, पेनल्टी देनी पड़ रही है, फाइन देना पड़ रहा है। ओके, now next is, in the addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। अब यहाँ पर देखिए कि गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इन एडिशन टू एनी एक्शन, कोई भी एक्शन जो गवर्नमेंट कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी लॉ का ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, कोई मतलब कोई लॉ बना दिया गया और उस लॉ को कोई भी अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, सो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर सो अगर किसी को ये फील होता है, ठीक है, कि भाई ये फॉलो नहीं किए जा रहे हैं पर्टिकुलर लॉ को, सो इफ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जांपल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट,
he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. ओके अब गवर्नमेंट के पास तो देखो क्या है कि गवर्नमेंट जो भी फंक्शनिंग कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को ये भी लगे कि किसी भी लॉ को ढंग से फॉलो नहीं हो, किसी भी कोई भी लॉ बना है उसको ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कोई वो नहीं चलाया जा रहा है, तो वे भी कुछ स्टेप उठा सकती हैं। कौन? पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी पर्सन को ये लगे कि उसको उसके रिलीजन या उसकी कास्ट के कारण किसी भी जॉब में नहीं लिया गया, तो वो क्या कर सकता है? वो कोर्ट जा सकती है, ठीक है, कोर्ट जा सकता है और ये वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है कि जो लॉ बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो वो ये क्लेम कर सकती है कोर्ट में जाके कि द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड एंड द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन। अब गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो ये ऑर्डर देगा कि क्या स्टेप उठाने की नीड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो हु गिव्स द गवर्नमेंट this power to make decision and enforce laws? गवर्नमेंट को डिसीजन लेने और लॉ को फॉलो करवाने यानी उन्हें एनफोर्स मतलब उनको क्या करने? एनफोर्स करने के लिए कि जो पावर है वो उन्हें कौन देता है? ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं ना कि गवर्नमेंट पे ये पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकती है, फिर कोई लॉ बना रही है तो उसको वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है, फोर्सफुली उसको लोगों को करना पड़ेगा फॉलो। तो इस तरह की पावर गवर्नमेंट को कौन देता है? So the answer to this question depend on the types of government there is in a country. So इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करेगा? टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के टाइप्स जो एक इस कंट्री में है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। So that's all for today. Have a good day.